Hello everyone, let's continue with this question. So find out the subnet ID, first host and last host and DBA for the given IP address and subnet mask. Right, this is the IP address given here, subnet mask is given as this one. Then find out the subnet ID and first host, last host and direct broadcast address. Yes, what will be the subnet ID, what will be the first host, what will be the last host, and what will be the direct broadcast address? Try to find out. Okay, subnet ID is this one. Okay. Oh, that may be the right answer. So let's see. Okay. So let's check subnet. What will be the subnet ID? This is the first host. Okay. Last host is 254. Okay, so let me simplify this question. Yes, Mukesh, that may be the right answer. So let me simplify. So here we need to find out the subnet ID. So how to find out the subnet ID? Perform the AND operation between IP address and the mask, right? तो सबनेट मास्क दे रखा है और आईपी एड्रेस दे रखा है, इसके बीच में क्या करना है अपने को? एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है, राइट? तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा? 200। नेक्स्ट क्या आएगा? इन दोनों पे करेंगे तो ये ऑल टाइम वंस है, तो इससे करेंगे तो भी 13 आएगा। ये 138 आएगा। और नेक्स्ट ये 139 और 240 को कैसे लिखेंगे? सॉरी, 139 का मतलब क्या हो जाएगा? लेट्स सी, हियर इट इज 1 2 4 8 16 32 64 and 128. So we will take 128 plus, can we take 16? 128 plus 16, if we take 128 plus 16, so ये कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, so we can take 8. 128 plus 8, 8 8 16,
and here 2 plus 1 3 or 136, right? And then we require 3 also, 3, right? So it means here it is 128, here 0 0 0, here it is 1, here 0 and here 1 1. So this is what 139, ये 139 हो जाएगा. What about 240? 240 का मतलब हो गया यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, बाकी 0, राइट. सो इसको क्या कर देना है, ये 240 हो गया और इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो ये क्या हो जाएगा, 0 0, हियर इट इज़ 0 and here it is 0 and 0 0 0 and 1. So finally this is what 128. Okay, so we can say 128, this is what the सब नेटवर्क आईडी, राइट. तो ये हो जाएगा क्या, इट्स ए सबनेट आईडी, एस आई डी. सो इज इट क्लियर टू ऑल? सबनेट आईडी, इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, 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 okay. Okay, fine. Now let's see the next thing. After subnet ID, first host will be, let's see. So here 200.13.138.129. 129 is the first host. ये फर्स्ट होस्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट 130, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड होस्ट, एंड सो ऑन. लास्ट में क्या हो जाएगा, 210.13.138.255. 255, this is what the direct broadcast address, DBA. And before this one 254, just a minute, before this one 254, just a minute. Okay, yes, so it is 210, 13, 138, 255. Before this one 254 and everything is same. So this is what the last host. Okay, so finally this is the first host, this one is second one, here it is subnet ID and last host and direct broadcast address. Is it clear to all? Okay, okay, fine. Now let's see the next one. So this is the question given. In this question, here it is asking, just a minute, let me change the color. So in this question, what it is asking, which address can be the source as well as destination address. So which address can be the source as well as destination address. तो इनमें से कौन से वाला सोर्स बनेगा और डेस्टिनेशन दोनों में बन सकता है, राइट. इनमें से कौन सा एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बन सकता है, वो चेक करना है अपने को. सो बताइए कौन से वाला बन सकता है इसमें, सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन एड्रेस.
ये मान लीजिए कोई पैकेट है, ये इसका सोर्स एड्रेस हो जाएगा और ये इसका डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों में पॉसिबल हो सकता है? मे बी सी। ओके। Okay, let me simplify. So here this can be the source address or not. This can be the source address or not. So here this address is what of class, this address is of class B or class A. Class A range is 1 to 126 and class B is 192 to 191 to sorry, it is 128 to 191 ना। तो इसका मतलब ये क्लास बी का एड्रेस है ना। और क्लास बी में ये वाला नेटवर्क पोर्शन होता है और ये होस्ट पोर्शन होता है। और होस्ट पोर्शन में सारी की सारी बिट क्या हो रखी हैं, 1 हो रखे हैं, है ना। whenever in the host portion all the bits are 1 then it is the direct broadcast address। तो इसका मतलब ये क्या है, DBA है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। और DBA that never be the source address, right, that is always in destination, right। तो DBA को हमेशा कहाँ पे, डेस्टिनेशन में यूज़ किया जा सकता है, सोर्स में कभी नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एड्रेस पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस एड्रेस इज क्लास ए एड्रेस and in class A this is the host portion and host portion all bits are 1, right। तो होस्ट पोर्शन की सारी बिट क्या हो रखे हैं, 1 हो रखे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एवर सॉरी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस मीन्स इट नेवर बी सोर्स, इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज डेस्टिनेशन। तो ये हमेशा डेस्टिनेशन में आएगा, राइट, सोर्स नहीं बन सकता। इसका मतलब ये एड्रेस भी पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? Yeah, that means D is the right answer. So let's see next one. Next one is 255.255.255.255. This address is what? This address is LBA, limited broadcast address, right। So limited broadcast address कहाँ पे यूज होता है, विद इन द सेम नेटवर्क। और LBA भी हमेशा एज ए डेस्टिनेशन यूज होगा, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज ए डेस्टिनेशन, नेवर कम्स इन द सोर्स। तो सोर्स में कभी LBA नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एड्रेस भी हम एज ए सोर्स यूज नहीं कर सकते। तो ये वाला एड्रेस है, इस एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, सोर्स में भी यूज़ किया जा सकता है और इस एड्रेस को एज ए डेस्टिनेशन भी रखा जा सकता है। तो इसको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। इट कैन बी source address or it can be destination address also, right। So we can say D is the right answer for this question. Now tell me, is it fine to all? Okay, okay, fine. Now let's see the next one. Next one is this one.
So here subnet mask is given, that is 255.255.255.240. Then which of the following is the broadcast address, राइट। तो ये वाला सबनेट मास्क दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से वाला ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा, ये फाइंड आउट करना है। ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। Option A. So here given that which of following, it means there may be more than one right answer. A and C. Okay, that may be the right answer. Let's see. So here this is the mask given, and these are the addresses given. Which of the following is the broadcast address? So for broadcast address, we need to know about the host portion. How many bits are used for the host portion? So here it is 240. 240 means this can be written as 4 times ones and 4 times zeros. इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टाइम जीरोस का मतलब ये हुआ कि होस्ट पोर्शन के लिए फोर बिट्स को यूज किया जाएगा, राइट। सो लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स क्या होनी चाहिए, 1। कब, ब्रॉडकास्ट के लिए, यानी कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस वही होगा जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स क्या होंगी, दैट विल बी 1 1। क्योंकि ब्रॉडकास्ट वही होता है ना, होस्ट पोर्शन में जब सारे के सारे 1 हो जाते हैं, राइट, तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो चेक करते हैं इस वाले में क्या है, 15 का मतलब क्या होता है, 1 1 1 1 एंड 0, राइट। तो इसका मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स क्या हैं, दे आर 1। इट मीन्स दिस इज पॉसिबल टू बी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। Okay, so option A is the right one. What about this one?
7, 7 का मतलब क्या हो गया, 111 देन 0, बट वी रिक्वायर 4 टाइम्स 1, 4 टाइम 1 यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ये वाला नहीं हो सकता. व्हाट अबाउट दिस वन, 31, 31 का मतलब 5 टाइम 1, 1 2 3 4 and 5 and 3 times 0. So here if we count least significant 4 bits that are 1, right, it means this is also a direct broadcast address, right? So this is also a direct broadcast address, so C is the right answer. What about 3, 3 का मतलब होता है 1 1 after that 0. So here least significant 4 bits are not 1, इसका मतलब ये possible नहीं हो सकता, right? It means A and C they both are correct answer. Now tell me, is it fine to all? Clear, okay, fine. Now let's see the next one. Here this is the broadcast address given, right? This is the broadcast address given. Then which of the following is the valid mask? तो इसके लिए कौन से valid mask हो सकते हैं? What can be the valid mask for the given IP address? Yes, try for this one. All of the above, okay. Option D, okay. Now let's see. So here this is the IP address, option B, okay. चलो चेक करते हैं कौन से वाला ऑप्शन रहेगा. So this is the IP address given 200.15.19.31. 31 को कैसे लिख सकते हैं? 31 मीन्स इट इज 0 0 0 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1, राइट, 5 टाइम 1. सो वैलिड मास्क इसके लिए कौन सा पॉसिबल हो सकता है? सो वैलिड मास्क का मतलब ये हुआ कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मास्क. तो इसका मतलब 240 का मतलब हो गया, जस्ट ए मिनट, here 1 1 1 1 then 0 0 0 0, ओके. तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्या बनने के लिए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनने के लिए, राइट. सो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनने के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. अगर ये वाला सबनेट मास्क यूज़ करेंगे, तो ये वाला सबनेट मास्क यूज़ करेंगे तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट कितनी है, 1 है. इसका मतलब ये वैलिड मास्क रहेगा इसके लिए, राइट. व्हाट अबाउट 248? 248 का मतलब एक 1 और लगा देंगे यहाँ पे. तो अब क्या होना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. तो इस वाले में लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स 1 है, राइट. तो ये भी क्या हो सकता है, वैलिड मास्क हो सकता है इसके लिए. व्हाट अबाउट 252? तो 252 का मतलब एक 1 और कर देंगे यहाँ पे. तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट 1 होने चाहिए. तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट भी यहाँ पे 1 है. इसका मतलब ये भी पॉसिबल केस रहेगा. इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द
right answer. Now tell me, is it fine to all? Okay, fine. So next topic is the classless IP addressing. So let's see. So in case of classless IP address, what will be the format? So this is the assume IP address given. In that case, here it will represent the block ID and here it will represent the host ID. तो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा IP एड्रेस. ब्लॉक आईडी होगा जिसको जो कि हमारा नेटवर्क आईडी था, अब ये क्या हो गया ब्लॉक आईडी, और दूसरा होस्ट आईडी, राइट. तो दूसरा पोर्शन क्या रहेगा, होस्ट आईडी रहेगा. Okay, and this is the format for the classless IP address. We know that classless IP address, that is the CIDR notation, classless interdomain routing notation, right? That is represented by slash. Using the slash, we can represent the CIDR notation, right? CIDR notation का मतलब slash notation होगी. और next thing, this is the example given for classless IP address. तो ये एक क्लासलेस आईपी एड्रेस का फॉर्मेट दे रखा है a.b.c.d/n, राइट. तो a.b.c.d/n, इसका मतलब ए बी सी डी, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट. नॉट ग्रेटर देन 255. 255 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए. मैक्सिमम नंबर 255 आ सकता है. तो कोई भी आईपी एड्रेस इस तरह का हो सकता है, लाइक 20.10.5.6/29, right. So this is what a classless IP address, right. So in this case also, n is what, n is the number of bits for the network id. n क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ बिट्स नेटवर्क आईडी और ब्लॉक आईडी, नेटवर्क आईडी और ब्लॉक आईडी, उसके लिए कितने बिट्स का यूज़ किया गया है, 29. इसका मतलब यहाँ पे 29 बिट्स ब्लॉक आईडी के लिए यूज़ कर रखी हैं, और टोटल कितना होता है 32 बिट्स. सो 32 बिट्स में से 29 माइनस करेंगे तो कितनी बिट बच जाएंगी होस्ट के लिए, राइट. सो नंबर ऑफ बिट्स फॉर द होस्ट इज 32 माइनस एन. 32 माइनस एन का मतलब यहाँ पे कितनी बच जाएंगी, 3 bits. So 3 bits that is used for the host and 29 bits that is used for the block ID in this case, right. So this is the way of finding out the number of bits for network ID, and this is what number of bits for the host ID. And what is the example, this is the example for the CIDR, that a classless IP address 10.20.30.40/27. This is what the example of a classless IP address. Again 100.40.50/50.20/26. This is also the example for the classless IP address, right. So these are the example for classless IP address. Now tell me, is it fine to all? Okay, 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 fine. Now next thing, that what are the rules for the CIDR block.
CIDR ब्लॉक के लिए रूल क्या होंगे वो अपने को डिस्कस करना है, राइट। सो व्हाट आर द रूल्स फॉर द CIDR ब्लॉक। सो फर्स्ट थिंग दैट ऑल द IP शुड बी कॉन्टिजियस मैनर, राइट। IP क्या होने चाहिए, दे शुड बी इन कॉन्टिजियस मैनर। नेक्स्ट थिंग, द IP डिमांड शुड बी इन द पावर ऑफ 2। IP डिमांड क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी इन पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 मीन्स लाइक 2 पावर 2, 2 पावर 4, 2 पावर 8, लाइक दैट। इस तरह की डिमांड होनी चाहिए IP डिमांड। नेक्स्ट, फर्स्ट IP इन द ब्लॉक, फर्स्ट IP इन द ब्लॉक शुड इवनली डिविजिबल बाय द साइज ऑफ ब्लॉक। तो जो फर्स्ट IP एड्रेस रहेगा उस वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इवनली डिविजिबल बाय द ब्लॉक साइज, राइट। तो ब्लॉक से इवनली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए उससे, राइट। सो दीज पॉइंट्स आर क्लियर। Okay, next thing, how to do divisibility, or what is the formula for divisibility, or we can say what is the way of divisibility। तो कैसे डिवाइड करेंगे किसी नंबर को। मान लीजिए ये एक नंबर दे रखा है 1011, 1011, 1011, 1011 means here it is 1 2 4 8। so what is the value for this one, it is 8 plus 2 plus 10 or plus 1, it is 11। so this number is 11। और इस नंबर 11 को अगर क्या किया जाए, 2 पावर 1 से डिवाइड किया जाए, राइट। तो 11 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 11 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, so remainder is 1 and quotient is 5, right। so जब इस नंबर को हमने क्या किया, 2 पावर 1 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, दैट शुड बी 1, और कोशिएंट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 5, राइट। सो हियर इफ वी ऑब्जर्व दिस वन, ये 1011 ये दे रखा है। अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये 2 पावर 1 है ना, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 1 बिट दैट इज टेलिंग अबाउट द रिमाइंडर, और रिमेनिंग बिट्स आर टेलिंग अबाउट द कोशिएंट। तो ये बिट्स कोशिएंट बताएंगी और ये बिट क्या बता रही है, रिमाइंडर बता रही है, राइट। तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1, और कोशिएंट का मतलब 101 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है ना। अगर 101 इसकी वैल्यू देखें तो क्या आएगी, 101 मीन्स 5। तो ये क्या बताएगा, इसका कोशिएंट बताएगा। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, दिस इज द नंबर इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 2 पावर 2। 2 पावर 2 का मतलब 4। 4 से अगर डिवाइड करेंगे 11 को, तो 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, सो हियर इट इज़ 3। सो रिमाइंडर इज व्हाट, 3, रिमाइंडर 3, और कोशिएंट क्या रहेगा 2। रिमाइंडर 3 कोशिएंट 2 कैसे आया, लेट्स सी। तो ये हमारे पास नंबर है 1011, ओके। और 2 पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स क्या बताएंगे, दे विल टेल अबाउट द रिमाइंडर, और नेक्स्ट बिट क्या बताएगी, रिमेनिंग बिट्स क्या बताएंगे, कोशिएंट को बताएंगे। तो 11 का मतलब क्या हो जाएगा 3, 11 का मतलब 3 होता है, और 10 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, राइट। ऐसे ही क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो इस नंबर को 1011 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स क्या बताएंगे, दे विल टेल अबाउट द रिमाइंडर, और ये बिट क्या बताएगी, कोशिएंट बताएगी। तो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3 आएगा, और कोशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, 2 पावर 4 से डिवाइड करें अगर इस नंबर को, तो जब इस नंबर को 2 पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेट्स सी।
1011। इसको 2 पावर 4 का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट क्या रहेंगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स दैट आर यूज्ड फॉर द रिमाइंडर, और रिमेनिंग बिट्स आर यूज्ड फॉर द कोशिएंट। तो रिमेनिंग क्या है, 0 है, तो कोशिएंट तो 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, 11 है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बार कंफर्म करो यहाँ तक समझ आ गया या नहीं। यस, यहाँ तक समझ आ गया। ओके फाइन। सो नेक्स्ट स्टोरी क्या है, नेक्स्ट स्टोरी ये है कि कोई भी n बिट का नंबर है और उसको 2 पावर k से डिवाइड करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे 2 पावर 1 से कर रहे थे, 2 पावर 2 से, 2 पावर 3 से, 2 पावर 4 से, ऐसे डिवाइड कर रहे थे ना। तो अभी क्या करना है, 2 पावर k से हमें डिवाइड करना है। जब 2 पावर k से डिवाइड करेंगे तो लिस्ट सिग्निफिकेंट के बिट किसी नंबर की वो क्या होते हैं, रिमाइंडर होता है, और n-k बिट दैट विल बी द कोशिएंट, राइट। तो रिमेनिंग n-k का मतलब क्या हो गया, रिमेनिंग जो बिट बच गई वो क्या होंगे, कोशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये क्या है, डिविजिबलिटी का एक वे है कि इस टाइप से क्या कर सकते हैं, डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको।